Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview, and our special segment on civil servants. जोड़ता हूँ टूटे हुए तारों को, पर फिर टूट जाते हैं वे, बता दे वक्त तू ही मुझे तेरा सामना कैसे करूँ. The words of a poet, but the pain of a visually challenged civil servant. Krishna Tiwari, India's first visually impaired collector. My eyes are blind, but I am not, is what he says about himself. Let us meet Krishna Tiwari and trace his journey from the fields to being a bureaucrat in this edition of HT's weekly talk show, The Interview, in our special segment on civil servants. Welcome to the show, Mr. Krishna Gopal Tiwari, and thank you for being here with us. Thank you so much, ma'am. It is great pleasure for me to be here with you. Let me begin with your childhood and growing up years. You are a son of a farmer. From there to the IAS, take me through your journey. My father was the marginal farmer, and seasonally he works as a marginal farmer. Generally, he was working as a weaver in a textile company in the Ahmedabad, that is in Gujarat. And I got the normal schooling from my primary school, that is government school, local government school. After that, I moved to TD College, Jaunpur for my graduation, and I completed my BA in English, Economics and History there. How did the idea of civil services come in? Actually, this idea came when I was in class 8th. Actually, my teacher was there, and this was the time just that school was going to close. And at that day, I was slightly just well dressed up. So my teacher sent me and he mocked on me, ki, yes, you are looking like a IAS officer. So I just first time I listened what is the IAS. There is the paddy cutting season, and someone has come from the urban area. So koi Allahabad se aaya hai, and he is sitting. I used to ask to him, what is the IAS? What is the civil services? So those who has come from the Allahabad or from any urban area to the village, they used to tell us, yeah, this is the. Sometimes they were right or wrong also about the facts of the IAS and civil services, but just in the hidden way, without opening to anybody ki what I am planning I am planning to go in IAS or not. Just I was getting the information, as much as information from the any source silently, just to make my plan कि can I prepare for the IAS or not. फिर आपने decide कब किया और कैसे किया? Actually, this was nothing कि date particular कि I decided. Actually, what happened कि in the early age, my eyes were fully healthy. Fully healthy means there was no problem in my eyes. When I was in class 6th, so in the night when I was walking, तो sometimes मैं टकरा जाता था किसी ग्लास से, कोई ऐसा पड़ा हुआ है जैसे नीचे ग्राउंड में. तो पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम दे जस्ट ऑब्जर्व्ड कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज आइज, एंड बिकॉज बीइंग ए विलेज बैकग्राउंड, लोगों ने सोचा कि दिस इज द नाइट ब्लाइंडनेस और रतुंधी टाइप समथिंग. तो लोकल डॉक्टर को दिखाया, बट दे कुडंट आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिजीज, दे कुडंट डायग्नोज व्हाट इज द डिजीज. एंड ultimately my father was in Ahmedabad, he was a textile mill worker. So he took me there, and there my eyes were checked, and it was diagnosed that there was a disease that is called the retinitis pigmentosa, RP. When I was in class, I am telling about the story of the class 6. But we were not much aware, RP, let RP, it will go as it is going, because everything in the day I could do, no problem was there. But in the night it was the problem. But what was in my mind, ki this happened with everyone. Everyone has the problem in the night. When I was going in the classroom, so when I sit in the behind, just in the last row of the class,
तो आई कुडंट सी देयर द ब्लैक बोर्ड, बट मैं सोच रहा था मैं तो फिट हूँ, नो प्रॉब्लम, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. एंड इवन इट वाज आल्सो ए प्रॉब्लम टू शेयर विद समवन, यस आई कुड नॉट सी देयर बिकॉज जस्ट सोशल stigma, whatever you can say. At that time, now I am saying social stigma, but at that time it was not feeling that this is social stigma. Just कि किसी को बताएंगे तो कोई क्या कहेगा. Never I found this that it is any such kinds of the problem that I should be very worried for, that my family should be worried. Sometimes you know na, I think कि if your parents are मतलब they are my parents my mother is has studied till class 5 and father till 8th. So but doctor had not told them that your child has so serious disease and sometimes he will be blind like this. So they were also not taking this is general. I was also not taking very serious, yes it is general, and we were going ahead for that. But it was in my mind always कि it is the problem in the night, and if I will not be able to see the night, how I will manage the night. At that level my parents tried their best to show me the doctors, and but ultimately doctors had the same thought that this disease had no treatment. When I was in graduation final year, I was in Jaunpur. In the final year, when I went to write the papers, I found that my eyes had become too much big. Every day the vision was decreasing very fast, and every day was very terrible. Okay. And my strategy was always how I will manage this. It was in my mind, but I was never opening to anybody. Yes, what is the problem and how I will manage. In the graduation final year, I found that when I went to write the examination, I found that just bending on the question paper, just only I think 1 inch or 2 inch distance between my eyes and my paper, and writing 3 hours paper, writing. So much pain in the neck. One line is overlapping to the other line. It was, I felt that now it is the practical problem in my eyes, but I was not aware with these all things. What is the visually impaired, who is visually impaired, how the certificate can get, what are the government facilities, or what are the government rules, regulation, provision for the visually impaired. I was truly not aware with these all things. So what I planned कि until my eyes become totally blind, make me totally blind, I should go to the Allahabad and prepare for the civil services, and not for civil services, whatever the job I could get, prepare for that and get job before I become totally blind. So this was the plan. I went to the Allahabad. But when I went in Allahabad, I went to the State Public Service Commission. There they told there is very less opportunity of job for you. So you should prepare for the professorship and lectureship and for other jobs which are traditionally for the visually impaired. So I did my MA in economics and prepared for the NET lectureship. I cleared the NET lectureship for that. So this was the when I was going the blind at that time, at the age of I think 21, 22. So you said till you don't become totally blind, you must take up a job. So आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, बट ये आई वॉज जस्ट फीलिंग कि आई शुड डू दिस, मतलब आई हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट गेटिंग द जॉब एज सून एज पॉसिबल. मतलब बहुत डरावना था, मैं आपको बताऊं तो, कि आज मैं ऐसा देख रहा हूँ, कल और कम, परसों और कम, नर्सों और कम, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वाज. मैं बस ये कर रहा था कि मुझे जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें मुझे मैनेज करना है, बिकॉज 2-3 चैलेंजेस थी जो लोग बोलते हैं. एक तो you have not the money to go to get the coaching, you have not the any guidance like that who can you can be guided by someone for your preparation, and also this ki your physical thing also not responding as much as is required ना. तो देयर वर 2-3 चैलेंजेस. नॉर्मली क्या होता है आदमी का, पैसे की कमी, कोई बोलता हमारे पास पैसा नहीं था, कोई बोलता है कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा फिजिकल प्रॉब्लम थी, कोई ये बोलता हमें गाइडेंस नहीं मिल पाया. देयर 2-3 थिंग्स जनरली वी से, बट आई फाउंड, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट कि नथिंग आई एम टेलिंग कि आई हैव अचीव्ड दिस, नथिंग आई हैव अचीव्ड. आई एम सेइंग कि अगर ऐसी भी परिस्थितियाँ आए तो मैंने ये अनुभव किया है कि हम इससे निकल सकते हैं.
मैकबेथ ड्रामा था ना, उसने कहा मैकबेथ शेक्सपियर का मैकबेथ है। हाँ, उस ड्रामे में मैंने देखा ना, वो लास्ट तक एफर्ट करता है, सब लोग उसको घेर लेते हैं कि अब मार देंगे, है ना, बिकॉज जो अपोजिट जो आर्मी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो सिंगल आदमी उसका मुकाबला क्या कर सकता था, है ना। बट उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी थी कि वो लास्ट तक ट्राई करेगा, मतलब खुद से तो नहीं मरेगा, सरेंडर तो नहीं करेगा। तो मेरा यही सोचना था कि जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, कोई ऐसी नहीं कि मेरे सामने आ रही हैं और बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेट मी डू माई बेस्ट। अगर मैंने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो खोने को क्या है मेरे पास, ठीक है। तो स्कूल की बात अगर करें तो ऐसा भी था कि आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ नहीं सकते थे, आपको दिक्कत होती थी, सो यू यूज्ड टू फेक रीडिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। हाँ, ये मेरी आदत बहुत मतलब अच्छी या ख़राब जो भी आप समझें, कि मैं ऐसे कि मतलब टीचर को मुझे ना बताना पड़े, हमारे क्लासमेट्स ये ना समझें कि ऐसा है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड, आई हैव ए विजन प्रॉब्लम। बेसिकली आई डोंट, मतलब मैं बचपन में ना बिल्कुल नहीं पसंद, कोई बोले मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगता था अंदर से, ठीक है। तो नेवर आई वांटेड टू लिसन सच थिंग अबाउट मी। एंड सो अगर समथिंग इज रिटन द ब्लैक बोर्ड, इट टीचर इज स्पीकिंग एंड ही इज राइटिंग, तो ही आस्क व्हाट आई हैव रिटन, तो आई जस्ट मतलब वो टीचर ने बोला वही बोल देते थे। कई बार फंस जाते थे, कई बार नहीं फंसते थे, तो डंडे पड़ते थे कि आपने गलत क्यों बताया। तो बट मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ये आंखों में ये प्रॉब्लम है ऐसा। तो ये जो एक अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ कॉम्प्लेक्स था, वो बाद में हटा और सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद हट गया क्या, या अभी भी कुछ ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर यू फील कि यू डोंट वांट टू? नहीं, मुझे अभी भी नहीं अच्छा लगता, मतलब शेयर करना ऐसा कि विजुअली इम्पेयर्ड जो है इम्पेयर्ड, तो आई हैव टू वर्क फॉर दैट और आई हैव टू मैनेज दैट। बट सेइंग कि यस आई एम विजुअली इम्पेयर्ड एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, रियली मुझे प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी कहे कोई, आपको पता है मैं एक डिस्ट्रिक्ट में था, तो मैं मतलब आई ट्राई माई बेस्ट टू फील माई सेल्फ एज ए नॉर्मल एंड ऑलवेज आई प्रेफर एंड आई लाइक टू एक्ट लाइक नॉर्मल। तो मुझे मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में था कि एक ने RTI में मुझसे को हमारे एक दिन मुझे RTI का एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि दिस पर्टिकुलर ऑफिसर कृष्ण गोपाल is not a visually impaired, he act as a visually impaired, so want to see his certificate। जहाँ सर्टिफिकेट की बात है, शायद बहुत दिक्कतें हुई आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ ब्लाइंडनेस मिलने में। सर्टिफिकेट ब्लाइंडनेस में पता नहीं, हमने जो फील किया वो हम बता रहे हैं, या जो हमने उस समय देखा कि सर्टिफिकेट लेना पता नहीं लोगों की, मुझे ऐसा पता नहीं भरोसा नहीं, तो लोग इसमें भी ढूंढते हैं, मतलब कि एक आप समझो ना कि इस बात को आप रखो कि एक कोई पेरेंट है ना, हम 3 भाई हैं और पहले मेरे में डायग्नोस हुआ है डिजीज़, देन मेरे सेकंड मतलब बड़े ब्रदर में, फिर छोटे ब्रदर में, ठीक है, 3 में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे हों और तीनों में सेम डिजीज हो और जो प्रोग्रेसिव होगी धीरे धीरे करके उनको ब्लाइंड कर देगी, इस पे भी आप अगर सर्टिफिकेट बनवाए जाएँ तो मैं नहीं कहता सारे ऐसे हैं, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे हमेशा ऑनेस्ट लोग मिले और उन्होंने जितनी मेरी मतलब रिस्पॉन्स किया, रियली मैं बहुत फॉर्चुनेट मांगता हूँ अपने को, चाहे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या कोई डॉक्टर्स हों या कोई भी हों। बट कुछ ऐसे मिले जो ये अनुभव भी कराते हुए चले कि तभी मैं शायद इनकी ऑनेस्ट लोगों की मतलब उनकी कीमत भी समझ पा रहा हूँगा, या हमारे मन में उतना रिस्पेक्ट है उनके लिए कि सर्टिफिकेट बनाना है तो 10,000 ये रुपीज़, मतलब ये इनिशियल बातें थी ऐसी। एंड हमारी फैमिली दे नहीं सकती थी 10,000 रुपये उस समय, वो 10,000 नहीं दे सकते थे हम, वो ब्राइब के पैसे मांगे उन्होंने। हाँ जी, अब वो और क्या हो सकता है, मतलब उसको और क्या नाम दें। बट अल्टीमेटली आई गेट द सर्टिफिकेट एंड विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी फॉर दैट। ऑनेस्ट पीपल आर देयर एंड बहुत अच्छी संख्या में लोग हैं, ये ज़रूर है कि थोड़ा भटकना तो पड़ता है। आपका एक बड़ा इंस्पिरेशनल कोट है जो आप काफ़ी कहते हैं, माई आईज़ आर ब्लाइंड बट आई एम नॉट ब्लाइंड। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं मैटर करता कि आप आंखों से देख रहे हो तो सही है, ये आंखों से नहीं देख रहे हो तो गलत है, या आप गलतियां करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि हाउ मच कंसंट्रेटेड, हाउ मच डिवोटेड, हाउ मच डेडिकेटेड यू आर फॉर योर वर्क, दैट मैटर्स। आप कितने ध्यान से काम को कर रहे हो, कितने डेडिकेशन से कर रहे हो, कितने समर्पण भाव से कर रहे हो, मुझे लगता है कि दिस मैटर्स।
आपको आईएएस ज्वाइन करने के बाद कितना सहयोग मिला अपने कॉलीग्स के साथ? सहयोग मिला और वाज इट डिफ़िकल्ट? नहीं, मैं तो कहूँगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट मैम। जितने लोग हैं, चाहे जिससे मैं मिलता हूँ, मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे मेरे साथ करने वाले जूनियर ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है कि आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑल आर एक्सीलेंट एंड वेरी कोऑपरेटिव। 10 लोग मेरा फेवर कर रहे होंगे तो हो सकता है 5 लोग मेरा फेवर ना कर रहे हों, तो कोई बात नहीं ना, आई डोंट माइंड दैट। आपने ड्यूरिंग योर सेवरल टेन्योर्स इंक्रोचमेंट्स रिमूव किए थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेशल मैप्स, वो कैसा था और कैसे किया आप? This special map are something, these are just tools which are derived to make the easy the things, है ना। But generally what I think the best planning, ठीक है, that may be that map is special map or something is special, many things we can derive. But what I think everything, as I am feeling after the 14 year of the service, कि every task can be performed with the concentrated, dedicated and disciplined planning. एक टूल जो आपने रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम यूज़ किया कि टू सी द प्रोग्रेस ऑफ रोड, आप रॉड से खटखटा के उसको यूज़ करके देखते थे, उसके बारे में बताइए। ये टूल्स ना हम कई जगह पे बनाते रहते हैं। मैं फॉर द एग्जांपल, आपने चूँकि इसमें रेफरेंस किया है, तो व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इकोनॉमिक्स वाज माय पेपर एंड इन द फर्स्ट पेपर ऑफ द इकोनॉमिक्स द क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन द डायग्राम। तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई सा दिस कि यस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डायग्राम। आई रिक्वेस्टेड टू यूपीएससी कि प्लीज मेक द क्वेश्चंस फ्रेंडली फॉर द विजुअली impaired as they are not friendly, maybe some limitation of the organization. And when I attempt the second time, again I saw the same question paper. So I should not wait that the organization will make the things friendly for me. I thought कि what can I do? In my third attempt मैंने एल्युमिनियम के वायर काट के ले गया था मैं एग्ज़ाम के लिए। जैसे मेरा राइटर था, मेरे राइटर होते थे लिखने के लिए, सुबह दूसरा शाम दूसरा, और उसके बाद फिर उनको समझाना कि मतलब डायग्राम, इफ क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन डायग्राम हाउ यू विल टेल दैट। तो मैं एल्युमिनियम के वायर काट ले जाता, उनको ऐसे दिखाता था कि एल्युमिनियम वायर को मैंने टेढ़ा कर लिया ऐसे, और फिर दिखाया दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, आप ऐसे बनाओ, दिस इज द डिमांड कर, दिस इज द सप्लाई कर। वो एल्युमिनियम के वायर से मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस होती हैं, तो हम मतलब आई फोकस्ड ऑन माई व्हाट आई कैन डू। रॉड का जैसे आप बता रहे थे कि रॉड वो क्या होता था कि रोड बनते थे, अभी भी बनते हैं, और उन सड़कों का इंस्पेक्शन के वेदर दे हैव बीन डन और नॉट। तो व्हाट आई प्लान्ड कि आई टुक ए आयरन रॉड, आई हैड द लिस्ट ऑफ द रोड फ्रॉम वेयर टू फ्रॉम, मतलब रोड से लेंथ एंड एवरीथिंग। आई हैज ऑलरेडी द लिस्ट ऑफ द, सपोज देयर आर 300 roads and I have the list of those all roads. I reach suddenly in that village and I will ask to the public whose house is this, and I had a iron rod. So generally the public and my officers who are with me, they don't know why he is using this iron rod. Maybe he is using to help take the help from this rod something. But what hidden things were with me, when I was walking with the when I walk with that rod on the road, I find if the road quality is not good, the rod sounds different way, and if the road quality is good, the rod sounds different way. The road is compacted, there will be different sound. And in the side gutters, generally you cannot see because in the upper side of the there is so much mud and everything. But when I use that rod, yes, inside, so I come to know that the bottom is filled or not filled. By the sound of the rod, different type of the sounds, I could check better way कि whether the road is which is shown to me is really has the good quality or it is just showing me. As an IAS officer, आपने कौन से tools, और जैसे मैंने कहा जो एक rod का आपने इस्तेमाल किया, or the tools you use even while you are able to read the time, you use the mobile a great deal, you do net banking. So what are the tools you use for all this? You are saying my this watch is also, this is, it will look you as a normal, but you can touch this and you can feel ki what is the time. So there are many tools, there are very easy tools, screen readers are available, you can everything, now the things are very much accessible. What would you list as your challenges
your difficult moments, your achievements, and maybe some moments in life which you would like to forget, जो आप याद रखना चाहेंगे और जो आप भूलना चाहेंगे। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है मैम बताना कि हम क्या भूलना चाहेंगे और क्या याद रखना चाहेंगे। आप तो कवि हैं। नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि समटाइम्स ये खुद से आता है। मैं जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं लेक्चरशिप की, आपको पता है शायद मैंने 39 इंटरव्यूज़ दिए हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, और सब में फेल। तो उस समय, और मैं सिविल सर्विस का 3rd अटेम्प्ट देना था लास्ट, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय मैंने एक मतलब एक कविता, ऐसा नहीं कि मैं कविता लिखता हूँ, कहीं लिखा होगा आपको कि कविता मैं लिखता हूँ, बट ऐसा लिखता नहीं। मेरी ये शायद लास्ट कविता रही होगी। इसके बाद मैं बहुत परिस्थितियों में फंसता हूँ, तब शायद थोड़ा मोड़ा कविता है मैं कभी कुछ लिखता हूँ। तो उस समय जब मैं बार इंटरव्यू में फेल हो रहा था और नहीं मिल रहा था, तो उस समय मैंने एक कविता मेरे उसमें आई थी, और मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए मुझे। वो कविता थी कि मेरे और वक्त के बीच संवाद, मेरे और वक्त के बीच संवाद। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का, वो है कि मैं वक्त से एक तरह से कंप्लेन कर रहा हूँ, और सेकंड जो पार्ट है उसमें वक्त मुझे बता रहा है कि जो आप कंप्लेन कर रहे हो ये गलत है। तो जैसे पहला, जब बार आप सोचें कि आप फेल हो रहे हो, आप 39 इंटरव्यूज़ दे चुके हो, आप फेल हो रहे हो, तो उस समय मन में जो मेरे आ रहा था वो मैंने लिखा था। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जोड़ता हूँ टूटे हुए तारों को पर फिर टूट जाते हैं वे, सजाता हूँ नित्य नए सपने पर चूर हो जाते हैं वे, लड़ाता हूँ भानु को निशा से पर हार जाते हैं वे, निशा तू ही बता दे कि तेरा हरण कैसे करूँ, बता दे वक्त तू ही मुझे तेरा सामना कैसा करूँ। Mr. Krishna Gopal Tiwari, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us. Thank you so much, ma'am.